नमस्कार एवरीवन। हम ये बात बहुत सुनते हैं कि अगर कोई पर्सन ने सक्सेस पा ली है जिंदगी में तो उसे मन की शांति बहुत मुश्किल से मिलती है। ये जो है ना, ये बहुत डिस्टर्ब्ड रहता है। क्या वाकई में ये सच है? क्या हम दोनों चीजें इकट्ठी नहीं पा सकते? आज की जो हमारी इंटरव्यू है वो एक ऐसी शख्सियत के साथ है हु इज जोरबादी बुद्धा। ओशो कहते हैं जो भीतर से भी समृद्ध है और बाहर से भी समृद्ध है, हु हैज गॉट सक्सेस इन स्पिरिचुअलिटी एज वेल एज इन द आउटर वर्ल्ड। She is Dr. Namrata Pandey from Nepal, who is a social development worker, a researcher. She holds a PhD degree from Japan, and she had worked with the renowned organizations like World Bank and Asian Development Bank. She holds a 21-year long experience of her spiritual development, and she has presented her research papers in almost 13 countries. आइए स्वागत करते हैं विदाउट मच फर्दर डिले। इट्स माय एब्सोल्यूट ऑनर एंड माय प्लेजर टू वेलकम डॉक्टर नम्रता पांडे, an author, a researcher, a social development worker, and Acharya of Samrat Gurudwara. Welcome, Dr. Namrata Pandey ji, to our channel. It's totally a great privilege for me to have you with us today. Thank you so much, Ma. आपकी इंट्रोडक्शन इतनी इंस्पायरिंग रही, आई होप फॉर माय व्यूअर्स। तो ये कौन सी ऐसी गाइडिंग फोर्स थी? व्हाट इंस्पायर्ड यू फॉर दिस? Journey has always been guided by two pillars: continuous learning and spiritual awareness. I believe that knowledge gives us direction, but spirituality gives us the purpose. So, throughout my life, whether I was pursuing higher education, working with international organization, or serving communities, I have always tried to remain a learner. My greatest guiding force has been blessings and guidance of Samartha Gurudev through Samartha Gurudhara. It has taught me that success is not only about professional achievement, but about inner growth, compassion, and serving humanity. Whenever I face challenges, I remember that every experience is an opportunity to learn and contribute. जैसे ही मैंने आपके इंट्रोडक्शन में पढ़ा कि आपने वर्ल्ड बैंक में, एशियन डेवलपमेंट बैंक में काम किया है, तो आई पर्सनली बिकेम वेरी इंक्विजिटिव कि व्हाट इज द वर्क दैट यू हैव डन देयर एंड हाउ यू रीच देयर। आई माय व्यूअर्स आर आल्सो वेरी इंक्विजिटिव टू नो दैट। तो आप प्लीज बताएं कि वहां तक आप कैसे पहुंचे, आप वहां पर क्या काम करते थे? Yes, I have been fortunate to work on different development projects focusing on agriculture, rural livelihood, social safeguards, gender equality, and inclusive development. My role involved working closely with governments, local communities, and project teams to ensure that development reaches everyone, especially women, marginalized communities, and vulnerable groups. These opportunities came through years of dedication, academic preparation, a practical field experience, and continuous learning. Every assignment became a stepping stone to the next. I always tell young professionals that opportunities come when preparation meets sincerity. Hard work, integrity, and willingness to serve people have always opened new doors for me. इट कंटिन्यूस लर्निंग इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। जैसे कहते हैं ना, चलती हुई नदी के समान हमें होना चाहिए। स्टेगनेंट वाटर ऑलवेज स्मेल्स। तो लर्निंग के साथ हम एक नदी की तरह हो जाते हैं जो कंटिन्यूसली फ्लो करती रहती है और कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। इस बिल्कुल एक तरफ अपनी परिश्रम मेहनत और दूसरी तरफ से लेट द रिवर फ्लो। हाँ जी। यस। और जैसे आप आंसर में बताया कि आप मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के साथ भी काम कर चुके हैं, और उनके साथ काम करते हुए कोई ऐसी स्टोरी जो आपको टच की हो, जो आप शेयर करना चाहते हैं, जिसने आपकी लाइफ में जो आपका पर्सपेक्टिव है उसको चेंज किया? Yes, of course, there are many stories, but one thing I have learned is that people living with very limited resources often possess incredible resilience and hope. I have met women who had almost nothing materially, yet they continue to educate their children, support their families, and uplift others in their communities.
Those experiences taught me that true wealth is not measured by what we won, but by our courage, compassion, and willingness to help to another. These communities have inspired me to dedicate my life to inclusive development and social justice. With so many of responsibilities, how you balance your life with the inner peace and the professional? Actually, my source of balance is my spiritual practice through Samartha Guru Dhara. Spiritually is not separate from my professional life. It is the foundation of it. Daily meditation, Shumiran, gratitude to Samartha Gurudev and for everything, and regular sadhana help me remain calm, focused, and compassionate. When the mind is peaceful, decision become clear, relationship become healthier, and work become more meaningful. Inner peace is something we cultivate every day. आपने बताया कि आप डेली साधना करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और साधना तो एक ऐसी Yes, चीज है विच इज अ सोल्यूशन टू ऑल आवर प्रॉब्लम्स, आई फील। yes, of course, yes. जैसे आपने बात की समृद्ध गुरु धारा के बारे में, तो आप हमारे व्यूअर्स को समृद्ध गुरु धारा के बारे में थोड़ा और बताएं। और ये कौन सी धारा है और इससे आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट हुआ? My spiritual journey began in the year 2000 when I joined Samarth Guru Dhara under the guidance of Samarth Gurudev. In the same year, I completed the Acharya course, and since then, I have been serving as an Acharya in various national and international spiritual programs while continuing my own sadhana. Samarthakur Dhara transformed my understanding of life. It taught me how to live with awareness, gratitude, and love while fulfilling worldly responsibilities. It helped me realize that spirituality is not escaping from life, but living every moment consciously. Whenever I have achieved academically and professionally, I consider it blessings of Samartha Guru guidance. Sumiran and gratitude toward Gurudev are the two practices that give me strength every day. ये बहुत ही इंस्पायरिंग है कि सुमिरन और ग्रैटिट्यूड, दिस इज रियली, आपने एक ना क्रक्स ही बता दिया। पूरी साधना का एक क्रक्स बता दिया कि वाकई में सुमिरन के साथ अगर हम ग्रैटिट्यूड जोड़ देते हैं। मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगी कि अगर आप ग्रैटिट्यूड के बारे में और डेप्थ में जानना चाहते हैं तो मेरी आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। मीनाक्षी गर्ग जी के साथ मैंने वो इंटरव्यू ली थी। एंड शी इज रियली, आई फील, इंडिया की वो रोंडा बर्न है। और सुमिरन को अगर जानना चाहते हैं तो जैसे हमें मैम ने बताया, आप समृद्ध गुरु धारा से जुड़ सकते हैं। और ग्रेटिट्यूड के लिए भी आप समृद्ध गुरु धारा से जुड़ सकते हैं। यू आर ऑल वेलकम फॉर दैट। और आगे बढ़ते हैं हम। जैसे हम अपनी रोज की जिंदगी में देखते हैं कि लोगों को स्ट्रेस है, बहुत ज्यादा एंजाइटी है, डिप्रेशन है। तो आजकल के लोगों के लिए कौन सी ऐसी एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, अगर वो करें तो उनको थोड़ी चेंज दिखे अपनी लाइफ में, जो आपने समृद्ध गुरु धारा से सीखी हो? प्लीज शेयर करें। Yes, modern life is full of stress because our minds are constantly occupied with the past and the future. Samartha Guru Dhara teaches us to become aware of the present moment. A simple practice anyone can begin today is spending a few minutes in silence every day, wherever you get time. Sit comfortably, close your eyes, remember your Guru Dev or the divine with gratitude. Practice Sumiran and simply observe your breath without focusing anything. This small daily practice gradually brings calmness, clarity, and emotional stability. Even the 5 minutes of sincere practice every day can begin transforming our inner life. मैम ने बताया कि आप कुछ देर के लिए ही साइलेंस में बैठे, वही आपकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है अगर आप उसे सिंसियरली करते हैं। तो डायलॉग है ना मूवी में कि अगर आप शिद्दत से किसी को चाहते हैं तो पूरी कायनात लग जाती है आपको उससे मिलवाने से। तो अगर आप शिद्दत बिल्कुल से चाहेंगे कि आपकी लाइफ में कोई चेंज आए, तो वाकई में ही आपको यूनिवर्स एक लिविंग मास्टर आपको मिला देंगे, आप पर कृपा हो बिल्कुल जाएगी। जी। बहुत बिल्कुल मजा आ रहा है आपसे बात करके। आई होप माय व्यूअर्स आर आल्सो एंजॉयिंग इट।
आइए इस इंटरव्यू को हम थोड़ा आगे लेकर जाते हैं जेंडर इक्वालिटी की तरफ, जैसे आपने बात की। और मेरा भी जो नीश है वो वुमेन एम्पावरमेंट है, और मेरी अपकमिंग एक बुक भी है, वुमेन एम्पावरमेंट ब्रेकिंग द रूट्स ऑफ सोशल इनइक्वालिटी। आप भी जेंडर इक्वालिटी पर बहुत काम कर रहे हैं एट इंटरनेशनल लेवल ऑल्सो। और आपके अकॉर्डिंगली जेंडर इक्वालिटी क्या है और कैसे अचीव हो सकती है? First of all, for me, spirituality and professional life complete is the complement each other. Sadhana increases clarity, patience, and productivity. When our mind is centered, we make better decisions, communicate more passionately, and handle challenges without unnecessary stress. So I believe that a person who practices sincere sadhana can give their best effort in every field. That's why my work become my service, and my spiritual practice give me the energy to serve better. So regarding the gender equality means recognizing the equal dignity, opportunities, and potential of every human being. It is not about competition between men and women, but about partnership, mutual respect, and shared responsibility. So, achieving gender equality requires challenges or changes in families, education, workplaces, and policies. Men have a very important role because equality cannot be achieved by women alone. Supportive fathers, husbands, brothers, colleagues, and leaders help create compassionate and inclusive societies. I feel truly fortunate to have a life partner who has always respected and supported both my professional and aspiration and my spiritual journey. So my husband has been an acharya and a dedicated sadhak of Samartha Gurdwara since 2000. We began the spiritual path together, completed our Acharya training together, and have participated in countless sadhana programs side by side over the years. Our journey has not only been spiritual but also academic. We are both PhD holders. And throughout my academic journey, he continuously inspired, motivated, and encouraged me to pursue excellence. His unwavering belief in my potential gave me the confidence to achieve my goals. So, in every stage of life, whether in my professional work, spiritual practice, academic pursuit, or personal growth, he has stood beside me with understanding, encouragement, and respect. He has always supported my independence, valued my freedom to make decisions, and share responsibilities with me. So I believe that this kind of partnership built on mutual respect, trust, and shared values is a beautiful example of gender equality in practice. हमें बहुत खुशी हुई ये जानकर कि आपके हस्बैंड आपको पूरा सपोर्ट करते हैं। जैसे कहते हैं ना, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन। तो ये कोटेशन भी बिल्कुल सही है आपको मिलकर, कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल वुमन देयर इज अ मैन। ये बिल्कुल सही बात है बिल्कुल जी। बिल्कुल बिल्कुल अगर दोनों एक दूसरे के साथ खड़े हैं तभी हम सक्सीड कर सकते हैं। और फाइनली, अगर दोनों जेंडर्स इक्वल हैं, और सोसाइटी तभी ग्रो करेगी और हमारा कंट्री भी तभी ग्रो करेगा। ये बिल्कुल सही बात है, और नेशंस ग्रो करेंगे। बिल्कुल बहुत और अच्छा। वो हाँ एग्जाम्पल जी। हम ही है खुद। आपके अकॉर्डिंगली विमेन एम्पावरमेंट क्या है? वुमन एम्पावरमेंट केवल वुमन को ऊपर लेके जाना नहीं है कि उनको रेस्पेक्ट देना है। जैसे हमारे समर्थ गुरु बता देना कि वुमन को रेस्पेक्ट देना है, और जब हम वुमन को रेस्पेक्ट देंगे तो वो सारा जिम्मेदारियां उठा लेती है। तो रेस्पेक्ट देंगे तो अपॉर्चुनिटी भी साथ साथ आएंगे, और जो कुछ भी चैलेंजेस होता है ना वो साथ साथ भी हम कर सकते हैं। तो रेस्पेक्ट इज द फर्स्ट थिंग। हमारे गुरुदेव भी वही बताते हैं ना, रेस्पेक्ट देना है वुमन को, एक सृष्टिकर्ता को, जननी को, बेटियां को, माताओं को, जी। समग्र नारी जाति को। हम्म, जी। और जैसे हम आपने बात की कि मेल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन कई फैमिलीज में या कई जगहों में ऐसा है कि मेल अपना रोल नहीं कर रहे। तो ऐसे केसेस में विमेन क्या करे कि वो खुद को एम्पावर करे? एक क्या होता है ना, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग।
जो मैंने पहले भी बात किया था कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी होती है। ये सारा चीज हम ना प्रेम से ही करवा सकते हैं। प्रेम भी इसमें मेन रोल कर सकता है। तो उसके लिए जरूरी है कि अपनी जो पर्सनल ग्रोथ के साथ साथ अपनी पर्सनल जिम्मेदारी के साथ साथ खुद को साधना में रहना, एक अवेयरनेस, लविंगनेस, है ना, ये सारा चीज जो हम डेली लाइफ में और अपने पास जो कुछ भी है उनको सुख और संतोष के साथ कैसे लेना और वो जीवन में कैसे उसको एवरी स्टेप में कैसे अचीव करना, वही महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि हम हमारी अनुभव यही बताते हैं। और हम तो बहुत लकी है कि हम समर्थ गुरुदेव से जुड़ पाए, समर्थ गुरुधारा से जुड़ पाए। हमारे यहाँ दाम्पत्य प्रज्ञा भी है और वुमन एम्पावरमेंट का कार्यक्रम भी है। उसके माध्यम से भी हम साथ साथ हम कैसे चलना है, वो बहुत रिस्पेक्ट का साथ ईच अदर, नॉट ओनली फॉर वुमन, दोनों को साथ साथ एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, रेस्पेक्ट, लव, कंपैशन के साथ चलना चाहिए। और साधना, साधना बहुत जरूरी है। बहुत खूबसूरती से हमें मैम ने बताया कि प्रेम से हम कुछ भी करवा सकते हैं। ये बिल्कुल। बिल्कुल सही बात है। अगर विमेन चाहती है कि वो एम्पावर्ड हो तो उनको प्रेम के साथ ही रहना चाहिए, फैमिली में एग्रेसिव ना हो, प्रेम से अपनी बात आप रखें। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीसरी बार जरूर सुनी जाएगी। अगर फिर भी नहीं सुनी जाती तो आपका स्वागत है समृद्ध गुरुद्वारा में, वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम में, दाम्पत्य प्रज्ञा में। आप जानेंगे कि आप खुद ही एम्पावर्ड हैं, आपको जरूरत ही नहीं है बाहर से वैलिडेशन लेने की। आप खुद ही इमोशनली बिल्कुल। इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। इफ यू कुड चेंज वन माइंडसेट अबाउट वुमेन, व्हाट वुड इट बी? If I would change the mindset that women must choose between family and their dreams, वाओ। must choose between family and their dreams. ड्रीम्स। Women are capable because women are capable of nurturing families, leading organization, contributing to science, education, governance, spirituality, and transforming society. So when society believes in women's potential and provides equal opportunity, everyone benefits. एक रैपिड फायर क्वेश्चंस रहेंगे आपके लिए। एक वर्ड या एक सेंटेंस में आप बताएं, व्हाट इज दैट वन वर्ड और सेंटेंस दैट डिफाइंस योर लाइफ? Serve with gratitude, learn continuously, and live with awareness. अ बुक एवरीवन शुड रीड? Before I used to suggest Bhagavad Gita, now I used to suggest Samarth Gita. वाओ। अ डेली हैबिट दैट चेंज्ड योर लाइफ? Daily meditation and living in gratitude for everything. वुमेन एम्पावरमेंट एज पर यू? Empowering a woman is empowering an entire family and future generation. मन तो नहीं कर रहा इंटरव्यू को क्लोज करने का, बट टुवर्ड्स द एंड आई वुड लाइक टू आस्क यू वन लास्ट मैसेज दैट यू वुड लाइक टू गिव टू आवर व्यूअर्स, स्पेशली वुमेन हु हैव लॉस्ट होप और कॉन्फिडेंस, और जो कुछ करना चाहती हैं उनके लिए आप क्या एक मैसेज देना चाहते हैं? Live consciously. Live consciously. Do everything consciously. क्योंकि हम करते हैं पर क्या कर रहे हैं पता नहीं होता है। खाते हैं क्या, खाते हैं क्या, खाया था क्या, बोला था, एवरीथिंग क्या किया और क्या करना है। सो इन वन सेंटेंस, इन वन वर्ड, लिव कॉन्शियसली, सर्व सेल्फलेसली। हम करते हैं तो कुछ ना कुछ उसके हमारे स्वार्थ जुड़ जाता है। सो सर्व सेल्फलेसली एंड रिमेन ग्रेटफुल फॉर एवरी सिंगल थिंग एंड एवरी सिंगल डे। क्योंकि हम हमारे पास जो होता है ना उसके प्रति हम ग्रेटफुल नहीं होते हैं। हम कंपेयर करते हैं कि दूसरों को जैसे ही हमको चाहिए। सो रिमेन ग्रेटफुल एवरी सिंगल डे एंड फॉर एवरीथिंग यू हैव। आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आपके जो आंसर्स है ना वो बिल्कुल प्रिसाइज है, टू द पॉइंट है। एंड आई थिंक मेरे को खुद ही इंटरव्यू दो बार सुननी पड़ेगी, इतने डीप आपके आंसर्स हैं। बहुत ही बढ़िया आपने आंसर्स दिए हैं, एंड आई रिक्वेस्ट ऑल माय व्यूअर्स कि आप दो या तीन बार जरूर इसे सुने, बिकॉज आंसर्स आर रियली वेरी डीप। जैसे मैम ने हमें बताया कि लिव कॉन्शियसली, व्हाट आंसर, कि आप अवेयरनेस के साथ रहें। ओशो की जो सारी टीचिंग है वो अवेयरनेस के अराउंड ही रही है थ्रू आउट हिज लाइफ।
तो अगर आप अवेयरनेस को जानना चाहते हैं, आप ओशो के डिस्कोर्स जरूर सुने। एंड वंस अगेन आई वेलकम यू टू समृत गुरुद्वारा, अगर आप उसे प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। एंड सर्व सेल्फलेसली, वाकई में ही आप दिल से करें। अगर आप फैमिली में भी काम कर रहे हैं तो दिल से करें कि ये मेरी ही फैमिली है, ये मेरे ही मदर इन लॉ है, मेरे ही फादर इन लॉ है, मेरे ही हस्बैंड है, मेरे ही बच्चे हैं। बहुत बढ़िया आपने बताया। एंड थैंक यू वेरी मच मैम फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। वी आर रियली privileged टू हैव यू टुडे ऑन our channel, and thank you so much for your valuable time. And I hope my viewers will obviously get beautiful takeaways from this interview. And आप ज़रूर कमेंट करें आपको ये इंटरव्यू कैसी लगी, और what takeaway did you had from this interview. Thank you so much once again, ma'am. Thank you so much for this opportunity.